Welcome to the second part of Chemistry Chapter 2, Chemical Change and Chemical Reactions. So in this part, we are going to study about the types of chemical change or chemical reactions. It's a pretty straightforward and easy part. It doesn't have any much technicalities with it. So types of chemical change or chemical reactions. So see, we have to study 4 types of chemical reactions and then some supplementary types which we are going to see ahead. The first type is direct combination or synthesis. Second type is decomposition. Third is displacement, and fourth is double displacement. Each of this type we are going to study in detail, so don't worry about it. See, the first type, direct combination or synthesis. Just observe this. What is happening? A plus B gives AB. इसका मतलब क्या है? Two or more substances combine together to form a single substance. Two or more substances, A and B, it could be C also, they all combine together to form a single substance, a single compound. So it could be possible that two elements they combine together to form a single compound. ठीक है, which is also known as synthesis or direct combination. For example, carbon burns in oxygen, that's why heat, to form a gaseous compound called carbon dioxide, and it gives out a lot of heat. Now heat is not a compound, okay, it is energy. Compound formed here is only one. So two elements combine to form a single compound, that's why it is combination reaction. Magnesium burnt in oxygen, it combines with oxygen to form magnesium oxide. Two elements combined to form a single compound, combination reaction. It could be also that one element and a compound combines to give a new compound. For example, carbon monoxide burns in oxygen. See, carbon monoxide is a compound, oxygen is an element. It burns, carbon monoxide burns in the presence of oxygen. Both are gases. And if you burn, if you heat it, it gives carbon dioxide, which is also a gas, another compound, a new compound. So one compound and one element combined with each other to form another compound. That means this is also combination reaction. Next example, sulfur dioxide plus oxygen gives sulfur trioxide. Compound plus element gives compound, combination reaction. It could also be that two or more compounds combine to form a single product or a new compound, like ammonia. Ammonia is a gas, okay? It has a very pungent smell. तुम्हें अमोनिया अगर स्मेल करना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कहाँ पे तुम्हें स्मेल मिलेगी इसकी. बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जो अभी फिलहाल बंद है. तो तुम लोग सब रेलवे स्टेशन पे गए हो? रेलवे स्टेशन सब लोग गए होंगे, राइट? रेलवे स्टेशन में अगर तुम चल रहे हो या फिर तुम ट्रेन में बैठे हो, अपनी आईज बंद कर लो. अभी मत बंद कर लो, लेकिन इमेजिन करो कि तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन तुम्हारी प्लेटफॉर्म पे है, खड़ी है, और तुमने आईज क्लोज कर ली. जैसे ही ट्रेन आगे चली गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हारे नाक में एक ऐसी तीव्र दुर्गंध जाएगी, समझ लेना आंख खोल के कि तुम्हारे सामने अमोनिया का सोर्स खड़ा है. कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग हंस रहे हैं यहाँ पे. समझ में आया क्या है? Public toilet. Public toilet of railway stations is the primary source of ammonia. Actually ammonia बनता है यूरिया से, and urea is a primary constituent of urine. तो यूरिया से यूरिन, सॉरी यूरिन से यूरिया और यूरिया से अमोनिया. तो अमोनिया का स्मेल तुम्हें पब्लिक टॉयलेट में आता है, वो याद रखना है इसको, ठीक है? अच्छा, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बेसिकली एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट ये गैसियस फॉर्म में जब होता है तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं. जब ये दोनों गैसेस कंबाइन होते हैं तो हमें एक सॉलिड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड. ये वाइट कलर का सॉलिड है और इट इज सब्लिमेबल. तुमने 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर मैटर पढ़ा होगा, है ना? तो मैटर में बेसिकली तुम्हें बताया गया था कि एक सब्लिमेबल सॉलिड होता है अमोनियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं डायरेक्टली ये गैस बन जाता है, फिर उसको कूल करने पे डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, वाइट कलर्ड सॉलिड. ये वही अमोनियम क्लोराइड है जो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स करके बनता है.
ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये और एक एग्जांपल है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये सिंथेसिस या फिर कौन सा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी, सिंथेसिस या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, और एक चीज इसमें याद रख लेना, तुम्हें याद करने की जरूरत है इसको, दैट ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो गैसेस एक सॉलिड बनाते हैं, दो गैसेस मिक्स होकर एक सॉलिड बनाते हैं, वेरी यूनिक। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाउ टू परफॉर्म डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। ये एक्सपेरिमेंट तुम याद रख सकते हो इसके केमिकल इक्वेशन से। ब्लैक लेड सल्फाइड को तुम्हें लेना है टेस्ट ट्यूब में और हीट करना है। जब हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होके कंबाइन होके लेड सल्फेट बन जाएगा। व्हाइट कलर का होता है लेड सल्फेट। कलर याद रखना, तुम ये नहीं बोल सकते सर मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि कलर कैसे व्हाइट होगा इसका। अरे कलर कैसे व्हाइट होगा ये कोई सवाल ही नहीं है यार, कलर व्हाइट है तो व्हाइट है, याद रखना है, केमिस्ट्री है ये। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम वाला हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन होता है, रिबन। उसको तुम ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट करोगे, मतलब बर्न करोगे तो डेजलिंग लाइट देता है तुम्हें, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सिंथेसिस का एग्जांपल है। तो सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में बेसिकली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस कंबाइन करके बनाते हैं। अच्छा, उसका बिल्कुल उल्टा होता है डीकंपोजिशन, जो सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन डीकंपोजिशन? ब्रेकिंग अप of a compound either into the elements or simpler compounds such that these products do not recombine to form the original compound। जब कोई कंपाउंड ब्रेक होके एलिमेंट्स में या सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, सच दैट दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल कंपाउंड, इट इज नोन एज डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन हीट से हो सकता है, लाइट से हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से भी हो सकता है। जो डीकंपोजिशन हीट से होता है, जो डीकंपोजिशन हीट देने से होता है उसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं, नाम याद रखना। एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल है एक कंपाउंड का जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाता है। HgO सॉलिड होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको हीट करने पे मर्क्यूरी जो एक लिक्विड है, लिक्विड मेटल है, प्लस ऑक्सीजन जो एक गैस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये डेल्टा का मतलब होता है हीट, डेल्टा मतलब हीट इज गिवन। ठीक है। लिक्विड वाटर एक है, तुमने पिया ही होगा लिक्विड वाटर, बहुत ही यूनिक चीज होती है, पी के देखो बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो लिक्विड वाटर में बोल रहा हूँ, वाटर में जब हम लोग एसिड्यूलेटेड वाटर होता है, ठीक है। एसिड्यूलेटेड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एसिड्यूलेटेड वाटर इज वाटर इन विच फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड। तो ये वाटर में जिसमें एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं उसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। वाटर ब्रेक्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये इट इज ऑफ कोर्स काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इट इज कैरिड अबाउट और इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिक करंट हो, लाइट हो, हीट हो। ठीक है। कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में भी ब्रेक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है पोटेशियम नाइट्रेट का, जो एक सॉलिड होता है, सॉलिड कंपाउंड है। इसको हीट करने से पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, याद रखना। कंपाउंड कैन ब्रेक टू फॉर्म टू न्यू मोर कंपाउंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे ना 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड। ओके, अब यहां पे कुछ मेटल के कंपाउंड्स दिए गए। ठीक है। जैसे पहला है मेटल हाइड्रोक्साइड, और इतना ब्यूटीफुली दिया है कि हाइड्रोक्साइड के लिए अलग टेबल बना दिया है और उसमें रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में तुम्हें सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। सुना होगा नाम, रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है मेटल्स की जिसमें रिएक्टिविटी एज यू मूव अपवर्ड इंक्रीजेस। ठीक है। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे डिकम्पोज होते हैं उसके बारे में पूरा टेबल, पहला टेबल। ठीक है।
पोटेशियम और कैल्शियम, आई एम सॉरी, पोटेशियम और सोडियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हीट से डिकम्पोज नहीं होते, दे आर स्टेबल टू हीट। कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जब हीट करो तुम उसको तो वो मेटल ऑक्साइड और वाटर वेपर बनाते हैं। ठीक है, उसके सारे, एक्चुअली ये सबके साथ होता है, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर तक, कैल्शियम से लेके कॉपर तक सब लोग यही चीज करते हैं। उनके हाइड्रोक्साइड्स को अगर हीट करोगे तुम तो तुम्हें ऑक्साइड मिलेगा रिस्पेक्टिव प्लस वाटर वेपर मिलेगा। अच्छा, मर्क्यूरी और सिल्वर के अगर हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो तुम्हें मिलेगा मेटल, डायरेक्टली मेटल मिलेगा, मर्क्यूरी या फिर सिल्वर, ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल डिकम्पोज। अच्छा, मेटल कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होता है? तो पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट्स तो स्टेबल होते हैं, ठीक है, और वाटर में सोल्यूबल भी होता है। कैल्शियम से लेके कॉपर तक के कार्बोनेट क्या करते हैं? दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग विथ डिक्रीजिंग विगर। डिक्रीजिंग विगर मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी होता है रिएक्शन का, वो डिक्रीज होता रहता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो व्हाट डू दे गिव ऑन डिकम्पोजिशन? दे गिव रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कॉपर कार्बोनेट को हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बट ये जो रिएक्शन होगा कॉपर का वो बहुत स्लो होगा एज कंपेरेटिवली टू द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन अगर मर्क्यूरी और सिल्वर के कार्बोनेट को हीट करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली मेटल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दिस इज हाउ मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज। मेटल बाइकार्बोनेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बाइकार्बोनेट्स? बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना। NaHCO3, CaHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस। इसमें CO3 तो होता ही है क्योंकि कार्बोनेट है, लेकिन बाइकार्बोनेट में HCO3 भी होता है। तुमने इसकी वैलेंसी भी देखी होगी, HCO3 की वैलेंसी क्या होती है? 1- होती है, राइट। जैसे बाइकार्बोनेट्स को अगर तुमने हीट किया तो क्या होता है पता है? पहले तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव मेटल्स के, फिर साथ में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। तो मतलब ये डिकम्पोजिशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। मेटल नाइट्रेट्स कैसे डिकम्पोज करता है? देखो, पोटेशियम और सोडियम के जो नाइट्रेट्स होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं डिकम्पोज जब उसको हीट करते हैं, और फिर डिकम्पोज होके मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कैल्शियम से लेके कॉपर तक के नाइट्रेट क्या होते हैं? दे डिकम्पोज टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का है गैस ये, प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम, जिंक, लेड, कॉपर ये सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। ये पैटर्न तुम्हें पूरी याद रखनी है, ठीक है। सिल्वर और मर्क्यूरी के कार्बोनेट क्या, सॉरी नाइट्रेट क्या करते हैं? इनको जब हीट करोगे तो डायरेक्टली मेटल मिलेगा तुम्हें, और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। मतलब सिल्वर और मर्क्यूरी का भी एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न तुम्हें याद रखनी है। हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, अभी भी हो रहा है। देखो अंदर देखो, हो रहा है क्या? पक्का हो रहा होगा। तो तुम्हारे फूड में जो स्टार्च है, ठीक है, वो ग्लूकोज और शुगर में डिकम्पोज हो जाता है। तो स्टार्च एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज फर्दर डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है हमें, जिससे हम हमारा डे टू डे लाइफ का काम कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स भी डिकम्पोज होते हैं, बड़ी क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स भी डिकम्पोज होते हैं, वो क्या बनाते हैं? फैटी एसिड्स, एंड फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय रेस्पिरेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली डिकम्पोजिशन हो रहा है। बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर जो खाना है वो डिकम्पोज हो रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट से डिकम्पोजिशन अगर तुम्हें घर पे ट्राई करना है तो किचन में कर सकते हो तुम। मजाक कर रहा हूँ, ये सब करना मत, घर ब्लास्ट वास्ट हो जाएगा, मेरे पे नाम आएगा, मत करना है सब कुछ। वैसे तुम्हें लॉकडाउन में कुछ केमिकल मिलने भी नहीं वाले, ठीक है, करना है तो करो। ओके, सो हम लोग कुछ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, हीट करो उसको, ठीक है। जैसे ही वो ज्यादा हीट करोगे तो एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। वो कौन सा गैस है पता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन भी निकलेगा साथ में।
और एक येलो सॉलिड मतलब लेड मोनोक्साइड वो पीछे रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा। तो लेड नाइट्रेट गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड प्लस ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में डालो और हीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अगर टेस्ट करना है तुम्हें कौन सा गैस है, क्योंकि इट इज़ ओडरलेस एंड कलरलेस, तो उसको अगर लाइम वाटर में डालोगे, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं होता है, ठीक है। लाइम वाटर मतलब क्या होता है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, स्लेकेड लाइम का सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये याद रखना, मैंने तुम्हें एक टेबल भी दिया था, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेकेड लाइम। ठीक है, स्लेकेड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है दैट इज बेसिकली becomes milky on passing carbon dioxide through it। ठीक है, अच्छा, रेसिड्यू जो जिंक ऑक्साइड है वो येलो कलर का होता है when it is hot but it turns white on cooling। remember the color, remember the process। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ रिमेंबर रिमेंबर, पता नहीं कितना रिमेंबर कर पाएंगे, है ना। करना तो है यार, कोशिश तो करनी है पूरी। अच्छा, और एक एक्सपेरिमेंट देखो, और एक आया, हीट ऑरेंज कलर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट ये है NH4 ट्वाइस Cr2O7, बहुत डेंजरस है ना फॉर्मूला, ऐसा ही है, क्या करें। ऑरेंज कलर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे, इसको ये हीटिंग करने पे इट स्वेल्स एंड डीकम्पोजेस इवॉल्विंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इवॉल्व होता है इससे, वाटर वेपर इवॉल्व होता है इससे, एंड ग्रीन सॉलिड क्रोमियम ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। सुपर्ब ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है, कलरफुल एग्जाम्पल एकदम। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, आई एम सॉरी, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4.5H2O। तो ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट का, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हो तुम .5H2O। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको जब हीट करते तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट विच इज एनहाइड्रस कलरलेस कॉपर सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर वेपर। ठीक है, अच्छा, ये एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, ड्राई कॉपर सल्फेट सॉल्ट जो होता है, अगर इसमें वापस कुछ ड्रॉप्स हमने पानी के डाल दिए तो ये वापस ब्लू कलर ले लेता है, वापस हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और हमें टेस्ट करना है कि वो लिक्विड वाटर है या नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है और वो पी के कोई मर भी सकता है, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि whether the given liquid is water or not। So what do? You take anhydrous copper sulfate। If you don't have anhydrous copper sulfate, no problem। If you have hydrated copper sulfate, heat it। If you heat it, it gets converted into anhydrous या dry copper sulfate। You add few drops of water into it, and as you add water into it, it'll, if it is water, if the liquid with you is really water, then this anhydrous salt copper sulfate, which is white in color, dry powder, will get converted into hydrated blue colored copper sulfate salt। ठीक है, याद रखना है इसको। So most of the reaction that we have considered proceed quite definitely in a certain direction, and it is possible to identify the reactants and product। However, there are also some group of reaction in which the direction of chemical change can be reversed by changing the condition under which the reaction is taking place, and such reactions are called reversible reactions। ये प्लीज इसको पूरा नोट कर लो, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि CuSO4.5H2O is reversible which gets converted into CuSO4 plus 5H2O। अच्छा, वापस इनको CuSO4 और 5H2O को वापस मिक्स कर दिया तो इट विल गिव यू CuSO4.5H2O। तो ये जो डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है।
अच्छा, इसका और एक एग्जांपल देखो, इफ स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयन, द लेटर मतलब रेड हॉट आयन partially converted into magnetic oxide and hydrogen is released. If on the other hand hydrogen is passed over heated iron oxide, it partially changes back to steam. मतलब iron plus water gives iron oxide plus hydrogen, or hydrogen plus iron oxide gives water vapor and iron. In either case the reaction ends with a mixture of reactants and products. मतलब ये किसी भी केस में तुम्हें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, थर्मल डिसोसिएशन को एक्सपेरिमेंट से अगर मुझे प्रूव करना है, व्हाट इज थर्मल डिसोसिएशन? थर्मल डिसोसिएशन इज डीकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। तो तुम अमोनियम क्लोराइड जो मैंने तुम्हें बताया था सब्लिमेबल सॉलिड होता है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, तो उसको हीट करने से दो कलरलेस गैस निकलेंगे, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। These gases they move up at the upper part of the test tube, which is cooler. They combine again to form ammonium chloride. They again combine to form ammonium chloride, which appears as a white sublimate on cooler upper side of the test tube. A simultaneous reversible decomposition reaction brought about only by heat is thermal dissociation. Example of thermal dissociation: on heating, nitrogen tetraoxide changes into nitrogen dioxide, a reddish brown gas. On cooling, nitrogen dioxide changes into original compound nitrogen tetraoxide. ठीक है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हीट करोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कूल करोगे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्मल डिसोसिएशन विथ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। सो अब तक हमने जो रिएक्शंस पढ़े, मतलब सबसे ज्यादा जो इलेबोरेटिव था वो डीकम्पोजिशन था। इतने सारे एग्जांपल्स और टाइप्स हमने पढ़े दैट यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। नोट्स ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नोट्स लेके रखोगे और उसको बार बार गो थ्रू करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड इफ यू हैपन टू बाय दिस बुक, दिस पर्टिकुलर बुक सेलिना, नथिंग लाइक दैट, तो विराव दलाल तो है ही तुम्हारे पास, सेलिना भी ले लो। दोनों में तुम्हारे पास जो कंटेंट बनेगा और जो तुम्हारी तैयारी होगी एग्जाम देने की, ठीक है, वो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझने के बाद इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके उसको नोट करके उसको मेमोराइज करना, द होल प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट लाइटली प्लीज। द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज अ केमिकल चेंज इन विच a more active element displaces a less active element from its salt solution. इसका मैं तुम्हें क्या क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग, इन्होंने इसका वो सिंबॉलिक चीज नहीं बताया है, इवन डीकम्पोजिशन का नहीं बताया था। रुको, इसका भी नहीं बताया था। लेट मी टेल यू हाउ डीकम्पोजिशन लुक्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। Decomposition looks like this: AB gives A plus B. AB gives A plus B. अच्छा, what about displacement? A plus BC gives AB plus C. तो तुमने यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें डीकम्पोजिशन, इसमें क्या समझ में आता है कि एक कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ये दो सिंपलर सब्सटेंसेस दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डीकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग अपार्ट। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, ये कहां से आया है? डिस्प्लेसमेंट वर्ड हैज कम from the root word displace. Displace मतलब अपनी प्लेस से हट जाना, ठीक है। यहां पे कौन अपनी प्लेस से हट रहा है? देखो, ए अलग था, बी और सी साथ में थे। ए ने बी को अपने साथ ले लिया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया या सी को डिस्प्लेस कर दिया, हो सकता है ना। सी पहले बी के साथ कंपाउंड फॉर्म में था, अब सी अकेला हो गया बेचारा। सो ए ने बी को अपने साथ लेके सी को डिस्प्लेस कर दिया।
दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। इसमें एक एलिमेंट, एक कंपाउंड में से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको अलग करके किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। कॉपर सल्फेट को ले लो एक बीकर में, और उसमें कुछ पीसेस डाल दो जिंक के, और उसको स्टर करो ग्लास रॉड के साथ। कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। ये पूरा जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, वो फेड हो जाएगा उसका कलर, एंड इट विल बिकम कलरलेस। कैसा बन जाएगा? कलरलेस। अच्छा, एट द सेम टाइम कॉपर, ये कंटेनर या बीकर है, उसके साइड में पूरा स्टिक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किसने किया? जिंक ने। जिंक है वो एलिमेंट जिसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखा, कॉपर सल्फेट साथ में थे, अब जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें मैग्नीशियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अगर तुम बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे ये टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया है, तो दैट हाइड्रोजन गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, it will burn with a pop sound. It will burn with a pop sound. अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है? ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, उसमें से क्लोरीन पास करो तो क्या होगा पता है? पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? ये कलरलेस सॉल्यूशन येलो बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड जब बन जाता है, और आयोडीन और ब्राउन कलर, द कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स येलो ब्राउन एज आयोडीन अपीयर्स। ओ यस, ये येलो ब्राउन इसलिए बना, येलोइश ब्राउन इसलिए बना बिकॉज आयोडीन सेपरेट हो गया। सो पोटेशियम आयोडाइड में से क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? और भी है इसके एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट। From the above examples, it can be noticed that in metal, zinc is more reactive than copper. Zinc copper से ज़्यादा reactive. Magnesium is more reactive than hydrogen. In non-metals, chlorine is more reactive as compared to iodine. By taking similar examples, the following activity series can be prepared. तो metals की activity series जो हमने पहले ही देखी थी। अच्छा, तो इसमें activity series में हमें क्या समझ में आता है? एक्टिविटी सीरीज से हमें ये समझ में आता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। नॉन मेटल का भी एक्टिविटी सीरीज है छोटा सा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा एक्टिव है फ्लोरीन, सबसे कम आयोडीन। एक्टिविटी सबसे ऊपर ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, सबसे नीचे कम होती है, ठीक है? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, टू मोर एग्जांपल इन फैक्ट, टू establish this understanding about displacement reaction. Okay, Fe plus CuSO4 ये है आयन, ठीक है? और ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या कलर का होता है? ब्लू। इसको जैसे मिक्स करेंगे, आयन के नेल को अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम लोग डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, तो तुम देखोगे धीरे 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 ये जो ब्लू कलर है फेड होके पूरा ग्रीन बन जाता है। सो वी गॉट अ न्यू कंपाउंड FeSO4 आयन सल्फेट विच इज फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, प्लस कुछ रेडिश ब्राउन छोटे 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 पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब के साइड में स्टिक हो जाते हैं, वो है कॉपर, मतलब कॉपर डिस्प्लेस हो गया। What if, I would like to ask you and I would want you to think about this. What if, अच्छा तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, बताता हूं मैं तुम्हें। ये देखो, ध्यान से देखना, कॉपर की पोजीशन क्या है? ये देखो इधर। आयन की पोजीशन क्या है? ये देखो इधर। कौन ऊपर है? Who is above whom? Iron is above copper in the reactivity series. That means iron is more reactive than copper. That's why iron replaces or displaces copper from its सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, आयन ने डिस्प्लेस तो कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, लेकिन इसका उल्टा अगर हो तो क्या हो? मतलब इफ यू हैव कॉपर
plus FeSO4, what would be the reaction? FeSO4 ग्रीन कलर का है, उसमें अगर मैंने कॉपर का पीस डाला तो क्या हो? You know what would happen? Since copper is less reactive than iron, it cannot displace iron from its salt solution. So, क्या होगा? No reaction. ये reaction proceed होगा ही नहीं, ये reaction आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये reaction यहीं खत्म हो जाएगा. समझे? So always remember that a less reactive metal cannot displace more reactive metal from its salt solution, but always remember that a more reactive solution element will always be able to displace a less reactive element from its salt solution. अब हम आते हैं डबल डीकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये दो टाइप के होते हैं प्राइमरीली, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. अब इसको ये लोग ने ऐसे बताया AB प्लस सी डी गिव्स AD प्लस CB, लेकिन मैं इसको और अच्छे से बताना चाहूंगा और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन तुम्हारे सामने रखूंगा. तो कैसे इसको और अच्छे से बता सकते हैं? A प्लस B माइनस प्लस C प्लस D माइनस गिव्स. ठीक है, A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस मैंने क्यों लिखा है? ये जो प्लस माइनस है ना, दीज आर बेसिकली आयंस. ये क्या है? आयंस है. तो ये बेसिकली दो आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच में ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जहां पे ये अपने आयंस को म्यूचुअली चेंज कर लेते हैं. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस डी माइनस प्लस सी प्लस बी माइनस में. तो तुम देख रहे हो कि ये B माइनस ने अपनी जगह चेंज करके D माइनस के साथ अपनी जगह को रिप्लेस कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि B ने D की जगह ले ली, D ने B की जगह ले ली. डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डबल डीकम्पोजिशन, AB डीकम्पोज होके A और B अलग हो गए, CD डीकम्पोज होके C और D अलग हो गए, और उन्होंने वापस कॉम्बिनेशन करके AD और CB बना लिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इज हैपनिंग in double decomposition reaction. Let's look at its definition. So the definition of double decomposition reaction is, this is a type of chemical change in which two compounds in a solution react to form two new compounds by mutual exchange of radicals. Mutual exchange of radicals के थ्रू दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है. अच्छा, इसके दो टाइप जो मैंने पहले बताए थे तुम्हें, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हमने पहले भी डिस्कस किया था. ये अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस स्टेट, दो कंपाउंड्स अपने एक्वस स्टेट में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल सॉल्ट और अ प्रेसिपिटेट, as one of the products is known as a precipitation reaction. तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दो लिक्विड या फिर एक्वस स्टेट में जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक इनसोल्यूबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेट जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो बनाते हैं. जैसे कि BaCl2 बैरियम क्लोराइड जो एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम सल्फेट जो एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में होता है. ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बैरियम और सल्फेट साथ में आके बैरियम सल्फेट बनाते हैं, हो गया डबल डिकम्पोजिशन. और सोडियम और क्लोरीन साथ में आके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. लेकिन ये जो बैरियम सल्फेट है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में. बट सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही रहता है. वैसे ही कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जब रिएक्ट होते हैं सो कॉपर सल्फाइड बनाते हैं. कॉपर सल्फाइड इज अ ब्लैक पीपीटी, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें जो एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में होता है. तो जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है वो हमेशा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही फॉर्म होगा. अच्छा, इसका वो लोग ने एक्सपेरिमेंट से कुछ इसमें और एक्सप्लेन किया है. सिल्वर नाइट्रेट को ले लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो. तो जैसे ही तुम सिल्वर नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कर्डी व्हाइट
कलर का होता है, कर्डी वाइट, कर्ड जैसा होता है, वाइट कलर का। याद रखना ये कलर वलर और उसका जो कंसिस्टेंसी और जो भी डिटेल्स दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार केमिस्ट्री में। तुम इसको हल्के में लोगे ना, अरे हाँ ये ठीक है वीक है, ऐसा नहीं लेना इसको, क्योंकि तुम जो क्वेश्चन देखने वाले हो ना, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज बहुत ट्विस्ट करके दे रहा है और ये जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत लोग मैं देख रहा हूं गिव अप कर रहे हैं इजीली, घटिया होमवर्क करके भेजते हैं मुझे, बहुत लोग हैं ऐसे तुम्हारी बैच में, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें क्या है। अभी तक 8 स्टैंडर्ड तक का आइडिया क्या था उनका, अरे मैम तो इधर से मार्क करके देगी और हम कॉपी कर लेंगे, एफर्ट कहाँ क्यों करना, होमवर्क करने में एफर्ट क्यों करना है यार, ऐसे ही टाइम पास करो। बेटा अगर एफर्ट नहीं किया तो तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कच्चा रह जाएगा, ये याद रखना। अगर ये तुमने हल्के में लिया इसको तो तुम्हारा एफर्ट नहीं दिखेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो सिर्फ गधा मजदूरी मत करो होमवर्क करने के लिए, सोच समझ के लिखो आंसर, कुछ भी घटिया आंसर मत छापो, नहीं तो मैं पकड़ूंगा तुम्हें। बहुत लोगों को मैंने होमवर्क सबमिट करने के बाद भी मैंने उनका सबमिशन नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। मैं घटिया होमवर्क एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा मैं। फिर तुम कुछ भी बोलो, नहीं हमको तो स्कूल में बोला ऐसे करना है वैसे, कुछ भी बोलो, तुम्हारी स्कूल का तुम्हारी स्कूल जाने, मेरा स्टैंडर्ड अलग है, मैं अपने लेवल से काम करता हूं। तुम्हें अगर मास्टर बनना है, मास्टर तुम्हारे सब्जेक्ट का, तो मेरे पास आना। हाँ स्कूल के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो कोई ट्यूशन वाली आंटी भी कर लेगी। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग मास्टर्स, ठीक है। तो अगर मास्टर बनना है तुम्हें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, तुम्हारे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। और फिर ये मत बोलो कि सर स्कूल तो आगे है हम तो पीछे है, वो पीछे ही रहेंगे हम। मास्टर्स किसी रेस में नहीं होते, मास्टर्स का अलग चलता है, समझे। और ये अपने अपने पास मौका है अभी लॉकडाउन का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तुम 10th में जाओगे ना, तुम्हें सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे मेरे रेडीमेड, तो तुम स्कूल के साथ भाग सकते हो। अपना पूरा जो मेथड है वो हाइब्रिड होने वाला है नेक्स्ट ईयर। यू हैव नो इमेजिनेशन कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले 10th में। बट उसके लिए अभी तुम्हें मेरे साथ, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, हमें साथ में करनी पड़ेगी स्ट्रगल। तुम ऊपर ऊपर से काम नहीं कर सकते, याद रख लेना, नहीं तो मैं पकड़ दूंगा। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का स्पेशल टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड के साथ भी मिक्स करो तो सेम चीज होती है, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बनता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्पेशल टाइप प्रेसिपिटेशन। अच्छा, एक हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और उसमें बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालो, तो तुम्हें थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा इमीडिएटली, बैरियम सल्फेट का थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा साथ में। तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑफ द काइंड प्रेसिपिटेशन। Second type of double decomposition reaction or double displacement reaction is neutralization reaction. What is neutralization? Very important to remember this. The reaction between an acid and a base that forms salt and water only is referred to as reaction of neutralization. Acid और base mix होके salt और water ही बनाते हैं, only बहुत जरूरी, only नहीं हुआ तो neutralization नहीं बोल सकते। For example, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देते हैं, ठीक है। Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, राइट। अगर तुम देखोगे तो ये प्रॉपर आयोनिक इक्वेशन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ये जस्टिफाई करता है, बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑल्सो अकर विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे FeS प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2S, H2S गैस है। NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको मैं डबल डिकम्पोजिशन हाँ बोल सकते हैं, बट डिबेटेबल।
डिबेटेबल, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन के बहुत सारे यूज हैं, ये तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नाम के चैप्टर में, थर्ड चैप्टर है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन के क्या प्रैक्टिकल यूजेस है। अगर तुम्हें बी स्टिंग होता है, कोई मधुमक्खी तुम्हें काट लेती है, तो उसका जो स्टिंग है उससे फॉर्मिक एसिड बनता है, और फॉर्मिक एसिड तुम्हारे स्किन में एंटर करता है और बहुत पेन करता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अगर तुमने जहां पे बी ने काटा है उधर तुम अगर स्लेकेड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाओगे या लाइम वाटर लगाओगे, नींबू पानी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा लगाओगे, ठीक है, जो बेसिस है, तो तुम्हारा जो पेन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड वो बी ने डाला था तुम्हारी स्किन में, वो ये बेसिस के साथ मिक्स होके सॉल्ट और वाटर बना देगा, तो एसिड का जो इफेक्ट है, बर्निंग इफेक्ट, वो कम हो जाएगा। हमारे स्टमक के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्सेस HCl सिक्रीट करते हैं कभी कभी। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, तुम्हारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज जो खाना तुम खाते हो उसमें जर्म्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो किल कर देते हैं, उसके उसके जर्म्स को मार देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये एक्सेस ऑफ HCl तुम्हें पेन देता है, पेट में दुखता है या उल्टी या फिर ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी को अगर तुम्हें रिलीव करना है तो तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना चाहिए। तो ये मैग्नीशिया कोई गाय का नाम नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कंपाउंड है, ठीक है। या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन तुम्हें पीना चाहिए, विच इज बेसिकली इनो। इनो पिया होगा ना तुमने, इनो को पानी में डाल के फिर आता है, मजा आता है पीने को। कभी कभी ऐसा बहाना मार के भी हम लोग पी लेते हैं, मम्मी मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत उल्टी आ रही है, और इनो पानी में डाल के मिक्स करके पी रहे हैं, बहुत मजा आता है, मैं तो करता हूँ ये। हाँ, मतलब मैं अभी मम्मी को नहीं पूछता, लेकिन मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। उससे डकार आती है मस्त एकदम अच्छे से, और तुम्हारा गैस निकल जाता है, और जो एसिडिटी है वो पूरी न्यूट्रलाइज हो जाती है, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली बेसिस which reacts with the excess hydrogen chloride of our body in our esophagus or upper respiratory or digestive tract, and relieves that burning sensation due to excess of acid, and it gives us a lot of relief, okay, ठीक है। चलो, acids that are accidentally spilled onto our clothes or body can be neutralized with ammonia solution. Oh my god, can you believe that? हमारे बॉडी पे अगर एसिड गिर गया तो उस पे अमोनिया का सोल्यूशन डालना चाहिए। आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ? आर यू थिंकिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था अमोनिया का मेन सोर्स क्या है। आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ? डोंट इवन गो देयर मैन, डोंट इवन गो देयर। ये कैसे करना है इसको तो तुम्हें प्लीज, अगर कोई ये लेक्चर को अच्छे से सुन रहा है तो प्लीज मेरी एक बात मानो, तुम यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब नहीं, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि हाउ यू कैन न्यूट्रलाइज एसिड स्पिल्ड ऑन आवर बॉडी और क्लोथ्स विथ अमोनिया सोल्यूशन। Oh my God, can you believe that? And then I don't know how you're going to smell after that. I don't want to go there. Okay, if the soil is somewhat acidic and thus unfavorable for growing certain crops, slaked lime is added to neutralize this excess acid. कभी कभी राइस जहाँ पे ग्रो होता है वहाँ पे सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो अगर वहाँ पे मुझे कुछ और ग्रो करना है, सपोज ऑरेंजेस ग्रो करना है, तो ऑरेंजेस को बेसिक सॉइल चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लेकेड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डाल देंगे, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, वन मोर स्मॉल टॉपिक विच इज अगेन फ्रॉम क्लास 10, हाइड्रोलिसिस। क्या होता है हाइड्रोलिसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच a salt and water reacts to form acidic or basic solution. वो सॉल्ट को अगर पानी में डालोगे तो या तो वो एसिड या तो बेसिक सोल्यूशन देगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कब होता है? हाइड्रोलिसिस तभी होता है जब सॉल्ट हाइड्रोलाइज करते हैं, ओनली दो सॉल्ट हाइड्रोलाइज, ये वही सॉल्ट हाइड्रोलाइज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बने हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा क्योंकि यहाँ पे लोग ने दिया हुआ है।
This happens because a salt formed due to strong base and weak acid on dissolving in water will make a basic solution. A basic solution turns red litmus blue. ये पूरा 10th क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ने वाले हो तुम, ठीक है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या बनाएगा पता है? बेसिक सोल्यूशन। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट किससे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम फॉस्फेट को पानी में डालूंगा तो मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है और फॉस्फोरिक एसिड जो वीक एसिड है वो मिलेगा। बट अगर मैं एक सॉल्ट विच इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस उसको मैं अगर पानी में डालूंगा तो इट विल मेक एन एसिडिक सोल्यूशन विच विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। जैसे कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को अगर पानी में डालूंगा मैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस बनाएगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। जिंक सल्फेट, उसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो इट विल मेक जिंक हाइड्रोक्साइड विच इज वीक बेस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है और उसको अगर मैं मिक्स करूं तो, या फिर अगर मेरे पास वीक एसिड और वीक बेसिस है और उसको अगर मैं मिक्स करूं तो जो सॉल्ट बनेंगे वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। तो हमने जो यहाँ पे सॉल्ट्स की बात की जैसे कि पोटेशियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट, दीज आर बेसिक सॉल्ट्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक सॉल्ट्स। क्यों बेसिक सॉल्ट्स बोलेंगे इनको? बिकॉज ऑन एडिंग देम इनटू वाटर दे गिव बेसिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सोल्यूशन। अच्छा, बट फेरिक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट ये क्या है? दे आर एसिड सॉल्ट्स, एसिडिक या फिर एसिड सॉल्ट्स। व्हाई? बिकॉज व्हेन आई ऐड देम इन वाटर दे गिव एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है एंड वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यार बहुत सारी चीजें मैंने बताई तुम्हें और आई होप कि तुम अच्छी नोट्स ले लो इसकी एंड देन यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2B विच आई एम गोइंग टू सेंड यू। एंड उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर में, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंड दैट्स इट। द चैप्टर विल बी फिनिश्ड आफ्टर दैट, राइट? अच्छा है ना, इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एंड करूंगा, ज्यादा टॉर्चर नहीं करने वाला मैं तुम्हें, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।